Good morning, lovely students. I hope you all are safe and robust at your homes. And I hope you all had enjoyed your weekend a lot. So, let's start our today's class. Students, in our previous classes, we were discussing about the story of a girl whose name is Omana. And in the last chapter, she was sharing her experience of train journey from Gujarat to Kerala. So, this chapter is also in continuation of our previous chapter, in which she will share her experience of train journey further, and here she is explaining what she experienced from the window of train. So, let's start our chapter from the window. So, here the date is 17th of May and the time is 7:30. So it is morning now. Last night I went to sleep early. It was too dark to see anything outside. So Heromana is explaining कि अब सुबह हो चुकी है और कल रात को मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि बाहर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था due to darkness outside. So, when the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. So, यहाँ पर उमाना बता रही है सुबह जब ट्रेन रुकी एंड वो उठी so the station was Madgaon. And where is Madgaon? Madgaon is in Goa. So, Madgaon कहाँ है बच्चों? Madgaon is a city in गोवा. सो गोवा स्टेट में मडगांव एक सिटी है और सुबह जब वो लोग उठे तो वो लोग मडगांव पहुंच चुके थे. दैट वॉज रिटिन ऑन द बोर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म. सो आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टेशन पे आप पहुंच चुके हैं? हर प्लेटफॉर्म पे देयर इज अ बोर्ड. लेट मी शो यू. जैसा भी यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है ऐसा ही हर प्लेटफॉर्म पे आपको एक बोर्ड दिखाई देता है in which the name of that particular place is written. उस जगह का नाम उस पर लिखा होता है. From that you can identify where you have reached. आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं. So यहाँ पर उमाना कहाँ पहुँच चुकी थी? मडगांव. And Appa said that we are going through the state of Goa. So as you all know, Madgaon is in Goa. So उसके father ने भी उसे बताया that they are going through Goa. So let's move forward. We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. So जब भी आप किसी लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं स्टेशन पे रुकते हैं कुछ समय के लिए ट्रेन. उस समय पर भी ट्रेन रुकी एंड to feel fresh they had some hot tea and they also filled their water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. It is so beautiful. It is green everywhere, fields with red soil and green crops, hills covered with trees. So यहाँ पर उमाना बता रही हैं कि बाहर का सीन बहुत ही सुंदर था एंड चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी. Fields were with red soil, hills covered with trees. And she also saw some small ponds behind the hills. So क्या क्या देखा उमाना ने मडगांव में? Green fields with red soil, hills covered with trees, small ponds and more water behind the hills. जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हिल्स के बीच में पानी. And the air was very cool. So Mana found it very beautiful because as you all know she has explained that in Gujarat the fields were brown and dry. So उसने अपने स्टेट में इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी इसीलिए उसे वो डिफरेंट लगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा. अहमदाबाद में द फील्ड्स वर ड्राई एंड ब्राउन बल्कि यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट था. हेयर द फील्ड वर्स
green and with red soils, and there were also hills that were covered with trees, right? So ये देखा उसने। एंड स्टेशन पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? आपको वाटर रिफिल करने के लिए टैप्स मिलते हैं। जब भी आप टायर्ड फील करें सो यू कैन हैव टी ऑल्सो। एंड आपको प्लेटफॉर्म पे सहायक दिखाई देते हैं, यानी कूली, जो आपकी हेल्प करते हैं टू टेक योर लगेज, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई कांट मेक आउट इफ इट इज रिवर और द सी। सो क्योंकि उसने अपने वहाँ जो पॉन्ड देखे थे वो बहुत ही ड्राई होते थे, उसमें बहुत ही कम पानी होता था। सो इसीलिए जो उसको यहाँ पर दिखाई दिए, शी कुडेंट मेक आउट वेदर इट वॉज रिवर और द सी। उसे उसमें बहुत ज़्यादा पानी लग रहा था तो उसे लग रहा था वो रिवर है या सी है। The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. So as I told you, वो उसे अहमदाबाद के क्लाइमेट से कंपेयर कर रही है। And the climate at Ahmedabad was so dry and hot. लेकिन comparatively गोवा में air was cooler and not that much dry as in Ahmedabad, right? The train passed a level crossing. Students, what is level crossing? Right, a place where railway line cross the road. As you can see, ये road है straight, and यहाँ अगर बीच में railway line cross करती है, so it is called level crossing. So आप लोगों ने भी level crossings से बहुत बार cross किया होगा. So people are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. So जब भी track पे कोई train आ रही होती है, so यहाँ level crossing पे स्टॉपेज लगाया जाता है बोथ साइड, सो दैट जो रोड पे ट्रैवल करने वाले हैं वो लोग वेट करें टू क्रॉस द रोड। सो हेयर इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग। सो जिस ट्रेन में उमाना ट्रैवल कर रही थी, जब वो ट्रेन पास कर रही थी तो उमाना हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द विंडो दैट पीपल आर वेटिंग एट द बोथ साइड ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters and even tongas and bullock carts. So उसने वहाँ different means of transport देखे, different means of land transports that are car, truck, auto rickshaw, cycles, motorcycles, scooter and even tongas and bullock carts also. So she saw all these means of transport waiting on the both side of the crossing, right? With people and goods in them. और उसमें कुछ में लोग थे और कुछ में सामान था. So now she is sharing that some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting at the level crossing. So यहाँ उमाना बता रही है कुछ लोग अपनी गाड़ी का या अपने व्हीकल का इंजन स्विच ऑफ नहीं करते जब लेवल क्रॉसिंग पे वेट कर रहे होते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं टू पास द ट्रेन। सो उतनी देर तक वो लोग ऑन रखते हैं। सो अननेसेसरी फ्यूल वेस्ट होता है। सो हमें ऐसा नहीं करना है। फ्यूल वेस्टेज के साथ साथ स्मोक एंड नॉइज भी क्रिएट होता है। सो जब भी आप लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे तो व्हीकल को हमेशा स्विच ऑफ करना है। एंड देन जब दोबारे सिग्नल मिलेगा लेवल क्रॉसिंग ओपन होने का, तभी आपको दोबारा से ऑन करना है व्हीकल को, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज। सो व्हीकल क्योंकि लोग स्विच ऑफ नहीं करते, ड्यू टू विच देयर इज लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग। हाउ डेंजरस दिस इज। सो अब आजकल लोगों के पास बिल्कुल भी लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग बिल्कुल वेट नहीं करते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, अगर ट्रेन तब तक नहीं सिग्नल दे रही है, तब तक ट्रेन नहीं आई है, तो लोग क्या करते हैं, बास के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस। एकदम से सडनली ट्रेन आ सकती है एंड ट्रेन की स्पीड इतनी तेज होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उसके नीचे आ जाएंगे। सो यू शुड नेवर डू दिस। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। प्रॉपर वेट करना है जब तक बार्स ओपन नहीं होते हैं, जब तक लेवल क्रॉसिंग ओपन नहीं होती है टू पास, तब तक आपको
जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सो कुछ लोग क्या करते हैं, बांस के नीचे से ही क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो व्हीकल्स को लेकर, इवन साइकिल्स को, बाइक्स को लेकर भी नीचे से घुसाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज वेरी डेंजरस, सो यू शुड कीप दिस इन योर माइंड. At times, our train crosses another train only, and I try to count the carriages in one such train. But both the trains were going so fast, we always got confused. So, जब भी दो ट्रेन क्रॉस करती थी, सो उनी एंड ओमाना क्या ट्राई करते थे, टू काउंट द कैरिएजेस, वो कोचेस काउंट करने की कोशिश करते थे ट्रेन में कि कितने हैं, बट ड्यू टू द स्पीड, दोनों ही ट्रेन की स्पीड फास्ट होने की वजह से वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे. सो अभी हमने लेवल क्रॉसिंग के बारे में डिस्कस किया. अ प्लेस वेयर अ रेलवे लाइन क्रॉसेस द रोड. सो दिस इज रेलवे लाइन. जब वो रेलवे लाइन रोड को क्रॉस करती है, सो इट इज कॉल्ड लेवल क्रॉसिंग. सो यहाँ पर उसने क्या क्या देखा था, कौन कौन से व्हीकल्स देखे थे, बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल्स, ऑटो रिक्शा, स्कूटर्स एंड इवन टोंगाज एंड बुलक कार्ट्स. सो ये देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया, लोग बास के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. ऐसा कभी भी नहीं करना है. सो डोंट क्रॉस बैरियर्स व्हेन क्रॉसिंग इज क्लोज्ड. जब क्रॉसिंग क्लोज हो, आपको नहीं क्रॉस करना है. यू शुड वेट प्रॉपरली. आपको वेट करना है प्रॉपर टाइम का, जब तक ओपन नहीं होते हैं. डोंट पुट योर लाइफ एट रिस्क. सो इसमें रिस्क है, एकदम से सडनली ट्रेन आ सकती है एंड आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है. सो यू शुड नेवर ट्राई दिस. ओके. एंड हमें लेवल क्रॉसिंग पे क्या रखना है, अपना इंजन स्विच ऑफ रखना है टू सेव द फ्यूल, राइट. सो स्टॉप इंजन्स while वेटिंग ऑन द रेलवे क्रॉसिंग. सेव फ्यूल, सेव एनवायरमेंट, सेव मनी. सो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है, राइट. सो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. So the first question is, what was the difference in the scene that Umana saw from the train on the first day and on the second day? So first day उसने क्या देखा था, the fields were brown and dry. लेकिन second day उसने क्या देखा, fields with red soil and hills covered with tree. So बिल्कुल ऑपोजिट था. पहले दिन बहुत ही ड्राई एंड ब्राउन कलर के उसने फील्ड्स देखे एंड नेक्स्ट डे उसने एकदम ग्रीनरी देखी चारों तरफ. Now the next question is, Omana saw many kind of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? So कुछ चीज़ें डीजल से चलती हैं, कुछ चीज़ें पेट्रोल से चलती हैं. So buses, trucks and few cars run on diesel, while scooters, cars, motorcycles, etc. runs on petrol. Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? So अभी हमने डिस्कस किया, because some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the railway crossing. That is why there was so much smoke and noise from the vehicle at the level crossing. So हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. We should always switch off the engine of our vehicle while waiting at the level crossing. Now next question का आंसर ये आप सभी लोग खुद लिखेंगे, आपका होमवर्क है. What can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? So आप क्या क्या कर सकते हैं बचाने के लिए. So पहला पॉइंट तो हमारा चैप्टर में ही डिस्कस हुआ है कि जब भी अननेसेसरी हम वेट कर रहे होंगे कहीं पर, हम वहाँ पर अपना इंजन स्विच ऑफ करेंगे सो दैट नॉइज भी ना हो एंड फ्यूल भी बचे और एनवायरनमेंट भी सेव हो, राइट. सो यहाँ पर आपको ऐसे ही कुछ और पॉइंट सोच के लिखने हैं, तो अब आप ये सब सोच के आज लिखिएगा एंड देन वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आगे का हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप अभी आप एंजॉय कर रहे हो माना की स्टोरी को. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.